everyone, welcome to Upedia and this is Shikha. So friends, if you guys are also preparing for group discussion for the campus placement or for any other PSU or any other public sector basically, so I would say this particular video is also going to be help you out to cover one more relevant GD topic of this week, right? Because we are covering current GD topic and GD is something which is making you aware related to current affairs, plus it is enhancing your communication skill, plus it is enhancing your confidence level, and obviously it is the one round in the as in mode of selection in PSUs, in any other public sector, and even I would say the campus placement, right? So yes, they can ask you question, they can ask you GD from anything related to your surrounding, related to your current, so you need to be prepared for that. And of course we are like covering a series of GD everyday basis, and we are covering 2 regular sessions, live session of GD, so you can also be the part of that also if you are preparing for GDs, right? So GD is something which is accessing your knowledge, your clarity of thoughts, your opinions, your confidence, your communication, right? That you must prepare, and it only comes with the practice. Practice is name of the game. So if you are attending 2-3 sessions in a week, or 5 sessions in a week, so you would be the perfect for preparation of GD, right? In this particular video, what is very important and relevant GD topic, that is regulatory challenges of digital assets and cryptocurrency. This is the group discussion topic of the day, and we are going to be discuss, and we are going to be provide the solutions for that what important pointers you can discuss in this topic, right? So see, cryptocurrencies, as you guys are aware about, it's a digital form of currency, and yes, of course, its hacks are on the rise, which is involving a lot of different kind of scams and frauds. See, now these are North Korea in particular is facing scrutiny for its alleged role in these illicit activities. Now there, it is suspected that North Korea is involved in that in scams or frauds of this cryptocurrencies, right? And obviously cryptocurrencies is something which is kind of coins, and it's a online digital money which we have to be transfer online only, and we are doing accordingly, right? So this is in very trend these days, right? Up now there are a lot of regulatory challenges which is associated with this, right? Digital assets and cryptocurrencies are including a lot of challenges, and we are going to be cover all this. See, अब digital है and मनी भी ऑनलाइन है, तो ऑब्वियसली वो बहुत सारे चैलेंजेस को इसमें कवर करेगी. फर्स्ट ऑफ ऑल इज रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी, ठीक है, लैक ऑफ क्लियर फ्रेमवर्क्स. अब इसमें फ्रेमवर्क ही क्लियर नहीं है, ठीक है. गवर्नमेंट्स वर्ल्ड वाइड आर स्टिल ग्रैपलिंग विद हाउ टू रेगुलेट दिस एसेट्स, ठीक है. अब उसमें क्या है, मतलब गवर्नमेंट को कुछ चीजें समझ आ रही हैं और कुछ नहीं आ रही, उनके बिहाफ पर ही वो रेगुलेशंस को बना रहे हैं, एंड वी आर नॉट क्लियर अबाउट दैट कि हाउ वी हैव टू बी डू दैट, राइट. सो जब भी हम क्रिप्टो करेंसीज को या कोई भी डिजिटल एसेट्स को ऐसे यूज करते हैं, तो एटलीस्ट वी शुड हैव अ नॉलेज ऑफ रेगुलेटिंग दैम, राइट. ज्यूरिसडिक्शनल डिफरेंसेस आ जाते हैं, ग्लोबल नेचर है क्रिप्टो करेंसीज का, जो क्लैश करते हैं वेरिंग नेशनल रेगुलेशंस के, ठीक है, जो बिजनेस में और इंडिविजुअल्स का कॉम्प्लेक्सिटी फेस करनी पड़ती है उनको, बिकॉज ये ऑनलाइन अगेन एक वो है मनी, सोर्स ऑफ मनी. क्लासिफिकेशन इश्यूज आ जाते हैं, ठीक है. अब इसमें ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि डिटरमाइनिंग वेदर डिजिटल एसेट्स आर सिक्योरिटीज, कमोडिटीज और करेंसीज इज अ मेजर हर्डल इंपैक्टिंग हाउ दे आर रेगुलेटेड. ये बहुत क्लासिफिकेशन इश्यू आ जाता है कि उनको हमें कैसे सिक्योर करना है, कैसे एज एन कमोडिटी यूज करना है, वो मनी है, हम उसी को कैसे एक हर्डल क्रिएट कर रही है. ऑल दीज थिंग्स आर देयर, ठीक है. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर चैलेंज. सिक्योरिटी एंड फ्रॉड, ऑब्वियसली इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैलेंज. साइबर सिक्योरिटी रिस्क आर देयर. अब जब एक क्रिप्टो करेंसी जो है, जब हम वॉलेट्स एक्सचेंज करते हैं, तो बहुत ज्यादा वल्नरेबल हैकिंग हो जाती है, ठीक है, जबकि बहुत ज्यादा हमारा लॉस हो जाता है जब ऐसा कुछ हैकिंग हो जाता है. स्कैम्स एंड फ्रॉड स्कीम्स, ठीक है. द रिलेटिव एनोमिटी ऑफ क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन मेक देम अट्रैक्टिव टू स्कैमर्स एंड फ्रॉडस्टर्स, ठीक है. अब क्रिप्टो करेंसीज इटसेल्फ वेरी अट्रैक्टिव एंड वेरी ट्रेंडिंग इन दीज डेज. जो स्कैमर्स और जो फ्रॉडर्स होते हैं बेसिकली, दे आर वेरी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट, एंड वो इजिली उस चीज को ग्रैब कर पाते हैं, बिकॉज ये ऑनलाइन सारा प्रोसीजर होता है. लैक ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, yes, lack of consumer protection is also there is a challenge. Why? क्योंकि जो ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम है उस पे इतना ज्यादा मतलब थेफ्ट या कुछ ऐसी कंसर्न नहीं है, बट क्रिप्टो जो स्पेस है उस पे बहुत ज्यादा फ्रॉड होते हैं,
ठीक है, एंड लोग इसमें बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लॉसेस में भी जाते हैं, राइट। वोलाइलिटी की अगर मैं बात करूं, प्राइस फ्लक्चुएशंस होते हैं। क्रिप्टो करेंसीज आर नोन फॉर द एक्सट्रीम प्राइस वोलाइलिटी मेकिंग देम रिस्की इन्वेस्टमेंट। सी क्रिप्टो करेंसीज उनके अपने प्राइस फ्लक्चुएशंस की वजह से ज्यादा वो ट्रेंड में होते हैं, राइट। एंड जब भी मार्केट फ्लक्चुएशन होती है, कभी प्राइस हाई हो गए, कभी लो हो गए, सो दैट इज द रिस्क इन्वॉल्व इन दैट, राइट। सो मेक श्योर कि दोज हु आर यूजिंग दैट एंड हु आर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन, तो दे नीड टू बी अवेयर अबाउट किसको कैसे इस चीज को लाइक ओवरकम किया जाए। मार्केट मैनिपुलेशन इज ऑल्सो देयर, ठीक है। कुछ अनरेगुलेटेड नेचर ऑफ मार्केट है जो कुछ मैनिपुलेशन बना देते हैं, कुछ सस्पेक्टेबल चीजों को लाइक अक्कर करते हैं, जिससे कि हमारा थोड़ा सा ट्रस्टवर्दीनेस खत्म हो जाता है। अडॉप्शन एंड यूजेबिलिटी, कॉम्प्लेक्सिटी। अब ऑब्वियसली क्रिप्टो करेंसीज एक खुद में भी एक कॉम्प्लेक्सिटी है। वाई? बिकॉज पीपल आर इवन नॉट अवेयर अबाउट क्रिप्टो करेंसीज होती क्या है, क्रिप्टो करेंसीज होती क्या है, फिर उनको यूज कैसे करते हैं। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में उनको नहीं पता भी लोगों को, तो वो ऑटोमेटिकली एक यूजर को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी फेस करने को मिलती है। यूजर एक्सपीरियंस, कुछ इंटरफेरेंसेस आ जाते हैं, कुछ एक्सपीरियंस बड़े चैलेंजिंग होते हैं, उनको रन करना नहीं आता उसको, ठीक है। वाइडर अडॉप्शन हो जाता है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, यस ऑफ कोर्स इसमें सिस्टमेटिक रिस्क तो है ही है। पोटेंशियल इंपैक्ट ऑफ वाइडस्प्रेड क्रिप्टो करेंसी अडॉप्शन ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ ट्रेडिशनल फाइनेंस सिस्टम इज अ कंसर्न, ठीक है। एक हमारा ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम है जो हम हमेशा से यूज करते आ रहे हैं, और वन इज क्रिप्टो करेंसी, राइट। सो उसमें एक रिस्क इन्वॉल्व है। नंबर सेकंड रिस्क ये इन्वॉल्व है कि व्हेन यू गाइज आर यूजिंग इट ऑन द ऑनलाइन एंड इन डिजिटल फॉर्म, सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर वी नीड टू बी कंसीडर, बिकॉज बहुत सारे फ्रॉड, स्कैम्स एंड बहुत सारे चैलेंजेस या बहुत सारी चीजें वहां पर है, ठीक है। पोटेंशियल फॉर डिस्टर्बशन, राइट। Growth of stable coins and other digital assets could disturb traditional banking and monetary policy also, right? कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं, challenges हैं, सॉरी। स्केलेबिलिटी, कई बार some blockchain networks struggle to handle large transaction volumes, ठीक है। कई बार बहुत large transaction volumes होती हैं और जो स्केलेबिलिटी होती है उसकी कुछ लिमिट्स होती हैं, so उसके अकॉर्डिंग भी वो थोड़ा सा एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है। एनर्जी कंजप्शन, कुछ क्रिप्टो करेंसी जो है, माइनिंग जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी को लाइक कंज्यूम करता है, जिसमें कि एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी इंक्लूड होते हैं, राइट। लीगल एंड टैक्स इम्प्लीकेशंस, ऑफ कोर्स टैक्स आर आल्सो देयर, एंड वो इकोनॉमिक के लिए भी बहुत ज्यादा लाइक हैम्परिंग हो जाता है। टैक्स कंप्लायंस, tracking and reporting cryptocurrency transaction for tax purposes can be complex, yes, it's very important. Legal ambiguity, the legal status of cryptocurrency and digital asset is still unclear in jurisdiction इतना क्लियर नहीं है। अब इसका सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं इन थ्रेट्स के लिए, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी इज इन ट्रेंड एंड देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस वी हैव डिस्कस्ड आर एसोसिएटेड विद दैट। प्रमोटिव इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, ठीक है। FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को फैसिलिटेट करना चाहिए ताकि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की डेवलपमेंट हो, राइट। आफ्टर दैट रेगुलेशन को अडेप्टिव रेगुलेशन होनी चाहिए जो कि फ्लेक्सिबल हो, अडेप्टेबल हो और रिवॉल्विंग सॉरी नॉट बहुत ज्यादा इवॉल्विंग हो क्रिप्टो स्पेस के नेचर में, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी को वी कैन स्ट्रेंथन, ठीक है, क्योंकि जब वॉलेट एक्सचेंज होते हैं ऑनलाइन तो बहुत ज्यादा लॉस भी हो जाता है, कई बार स्कैम्स, फ्रॉड्स होते हैं। सो यस, हमें हैकिंग, स्कैम्स और फ्रॉड से बचने के लिए साइबर सिक्योरिटी को भी स्ट्रेंथन करना होगा। मार्केट मैच्योरिटी को, अभी मार्केट मैनिपुलेशन इज द वन चैलेंज, अब हमें मार्केट को थोड़ा मैच्योर करना होगा कि वी हैव टू बी एनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ रेगुलेटेड क्रिप्टो करेंसीज जो डेरिवेटिव मार्केट्स होती हैं, ठीक है। एंड क्लियर लीगल फ्रेमवर्क्स बनाना चाहिए गवर्नमेंट को, जिससे कि एक कंसिस्टेंट रेगुलेशंस बने जिसमें एक लीगल स्टेटस डिफरेंट डिजिटल एसेट्स का डिफाइन हो, राइट। So there are a lot of challenges included in that, plus there we have some solutions as well on which we can work, ठीक है। So there are a lot of challenges we have discussed, ये बहुत major challenges हैं और बहुत सारे pointers आप इसमें like और add कर सकते हो if you are aware about. Apart from this, give real world like examples quote करने बहुत जरूरी हैं, ठीक है। Apart from this, आपको example भी quote करने होंगे कि जो आप चैलेंज कर रहे हो, मतलब बता रहे हो, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स है, स्कैम्स है, फ्रॉड्स है, ठीक है, डिजिटलाइजेशन इज देयर, सो यू नो मनी एक्सचेंज इज अ बिग चैलेंज, तो वो सब कुछ आपने एग्जांपल के साथ कोट करना है। प्लस सॉल्यूशंस आर आल्सो देयर, जो आपके चैलेंजेस है जब आप उसको ऑपोजिट करोगे तो वो आपके सॉल्यूशंस भी बनते हैं,
ठीक है. सो सॉल्यूशंस के साथ भी आपने उस तरीके से लाइक हैंडल करना है. सो दिस इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक. क्रिप्टो करेंसीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, फिर चैलेंजेस क्या क्या है और सॉल्यूशंस क्या है, अभी हमने डिस्कस किया. एंड इवन यू कैन डाउनलोड दिस डॉक्यूमेंटेशन फ्रॉम योरपीडिया पैनल. You can read it out and prepare it well. Plus, if you want to practice GD, so you can also be the part of GD regular session on Yourpedia, which we are having, and we are covering 2 topics in a day, right? So all the very best, and please prepare the important GD topic of the day. Good luck.